Assalamu alaikum, my dear students of class 1. I hope you are fine and safe at your homes. I am your teacher, Miss Suba, and I am going to teach you English. Our today's work is on our comprehension book, that is Pheasant English Book 1. We have to study unit number 1, part 2, that is Happy Sheep Family. First, we will read the second paragraph of this chapter, and then we will do practice of some flashcard, and we have to do exercise on page number 11. पेज नंबर 12 इज़ omit. आपने पेज नंबर 12 को omit कर देना है, कट कर देना है. Okay, first you have to mark date and day on page number 7, 8 and 11. सबसे पहले आपने पेज नंबर 7, 8 और 11 पे डेट और डे मार्क करनी है. टुडे द डेट इज़ 22 जून 2021 and the day is Wednesday. Our chapter name is Happy Sheep Family. We have already studied the first paragraph of this chapter in our previous lecture, and today we will read the second paragraph, but before that we have to revise the previous lesson. Let's read with me. Long ago in the jungle there was a lion cub. एक बहुत पहले की बात है कि जंगल में एक शेर का बच्चा रहता था. He was playing with an empty tiny tin. वो एक खाली छोटे टिन के साथ खेल रहा था. He was hitting the tin and running after to catch it. वो टिन को हिट करता था, ठोकर मारता था और उसके पीछे भागता था उसे पकड़ने के लिए. Once he hit the tiny tin hard and it went down the steep. एक दफ़ा उसने टाइनी टिन को बहुत ज़ोर से किक किया, हिट किया, तो वो ढलान से नीचे चला गया. Below the steep there was a sheep village. ढलान के नीचे एक भेड़ों का गांव था. Lion cub was surprised to see so many baby sheep playing in the courtyard. जो शेर का बच्चा था वो बहुत हैरान हुआ इतने सारे भेड़ों के बच्चे को सहन में खेलता हुआ देख के. ओके, नाउ व्हाट ही डिड. यहाँ तक तो आपको समझ आ गया. अब आगे देखें कि लायन के बच्चे ने क्या किया. ही रश टू जॉइन देम. वो तेज़ी से उनको ज्वाइन करने के लिए भागा, उनसे मिलने के लिए भागा. द बेबी शीप हैप्पीली वेलकम द गेस्ट. जो भेड़ के बच्चे थे उन्होंने बहुत खुशी से अपने नए मेहमान को वेलकम कहा, खुश आमदीद कहा. द लायन कब प्लेड ऑल द डे विद बेबी शीप्स. जो शेर का बच्चा था उसने सारा दिन भेड़ के बच्चों के साथ बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा खेला. नाइट फेल डाउन. रात हो गई. मदर शीप सेड द लायन कब यू कैन स्टे विद अस इफ़ यू लाइक. जो भेड़ की मामा थी उसने शेर के बच्चे से कहा कि आप हमारे साथ रुक सकते हो अगर आप रुकना चाहो तो. द लायन कब स्टेड विद देम. जो शेर का बच्चा था वो उनके साथ रुक गया. मदर शीप सेट द मील. जो मामा थी भेड़ की उन्होंने खाना लगाया. एवरीबडी एट मील हैप्पीली विद द गेस्ट. और सबने बहुत खुशी के साथ मेहमान के साथ खाना खाया. Now we will do some practice of our flashcards. Our first flashcard is rushed. Rushed means तेज़ी से. जब हम कोई काम करने के लिए जल्दी से जाते हैं तो उसे कहते हैं rushed. Our next word is happily. When we do some work with happy mood, it's called happily. Happily is a 3-syllable word. Our next word is welcomed. Welcomed is a 2-syllable word. Welcome का meaning है खुश आमदीद. गेस्ट. गेस्ट कहते हैं मेहमानों को. इट्स अ सिंगल सिलेबल वर्ड. स्टेड. स्टेड मीन्स रुकना. इट्स अ सिंगल सिलेबल वर्ड. और नेक्स्ट वर्ड इज मील. मील कहते हैं खाने को. जैसे आप लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं और उसमें डिफरेंट मीट, वीट, वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हैं, तो ये सब हमारे मील्स हैं, खाना. Our next flashcard is everybody. Everybody is a 4-syllable word और इसका मतलब है हर कोई.
Okay, now all of you please open page number 11. You can see 3 questions on this page. Our first question is circle and write the vowels in the following words. आपने इन वर्ड्स को रीड आउट करना है और इसमें से वाउल्स को सर्कल करना है और नेक्स्ट कॉलम में राइट करना है. फॉर एग्जाम्पल आवर फर्स्ट वर्ड इज़ मदर. हमें पता है हमारे पास 5 वाउल्स हैं इंग्लिश में, A, E, I, O, U. So we have to find these 5 words from these words. मदर में O और E हमारे पास 2 वाउल्स हैं, तो हम नेक्स्ट कॉलम में O और E राइट करेंगे. Now look at the second word, cub. Cub, C-U-B, cub. U is a vowel, so we will circle it and write it in the next column. Okay, in that way you will complete this question. Now move towards the next question. Question number 4. Read the caption. Write your name in capital letter. Circle the vowels. आपने अपना नेम कैपिटल लेटर्स में राइट करना है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन द नेम सारिम रज़ा. मैंने सारिम रज़ा राइट किया है. एंड देन यू हैव टू सर्कल द वाउल्स. फिर उसमें से आपने सर्कल्स वाउल्स को फाइंड आउट करके सर्कल करना है. फॉर एग्जाम्पल सारिम रज़ा में मैंने सारिम में ए और आई को सर्कल किया है और रज़ा में मैंने ए को सर्कल किया है, बिकॉज वी हैव दीज 3 वर्ड्स एज वाउल्स. Okay, now next question is question number 5. Write your school name in small letter and circle the consonants. Write your school name in small letter and circle the consonants. आपने अपना स्कूल का जो नेम है वो स्मॉल लेटर्स में राइट करना है और उसमें से आपने कंसोनेंट्स को फाइंड आउट करके सर्कल करना है. हमारे स्कूल का नाम है जिन्ना ऑफिसर स्कूल. और आपको पता है वाउल्स के अलावा जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कंसोनेंट्स होते हैं, तो उन्हें हम सर्कल कर देंगे. ओके, नाउ हैव अ लुक ऑन द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. राइट देयर बिगनिंग साउंड्स. यहाँ पे देखें डिफरेंट वर्ड्स राइट किए हुए हैं. आपने इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में राइट करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पहले हम पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को राइट करेंगे, फिर सी से, फिर टी से, फिर ई से, और इनकी नेक्स्ट कॉलम में हमने इसकी बिगनिंग साउंड राइट करनी है. फॉर एग्जांपल बैलून की बिगनिंग साउंड है हमारे पास बी बैलून, सो वी विल राइट बी. सी खब, तो हम सी राइट करेंगे. डोर, डोर, वी कैन राइट डी इन द सेकेंड कॉलम. आई, E. Our next word is garden. Garden start with letter G. Go. We have to write G in the second column. House. House. We have to write H in the second column. Jungle. Jungle. We have to write J in the second column. Listen. L की साउंड दे रहे हैं, L. So we have to write L in the second column. In that way we will complete this page. I hope you understand that how you have to do your work. You have to do your work neatly and carefully. You have to learn and practice your flashcards. I hope you enjoyed the video. Thank you so much. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.